Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। स्वरूपा माता जी दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए आज जो है हम लोग भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 10 और श्लोका 21 और 22 पे आज हम लोग पठन करेंगे। और आज जो इस अध्याय का नाम ही है भागवतम, जो है सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें छिपा है। तो भागवतम जो है ये प्रत्यक्ष कृष्ण का ही स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्तर्तम भव सागरे। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भगवान शब्द के रूप में उपस्थित होते हैं उस महामंत्र में, उसी तरह ये जो भागवतम है ये भगवान का ही स्वरूप है। और जैसे हर रोज हमारे जो स्वरूप माता जी वो जो श्लोका का उच्चार करते हैं, हर एक स्कंद भगवान के अलग अलग दिव्य अंग का विस्तार है। तो आज का श्लोका लेने से पहले मंगलाचरण करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक यदा 21वां दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 21। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. His Divine Grace Krishna Kripamurti Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Thus, when everything existed in darkness, the Lord desired to see Himself and all that was created. Then the eyes, the illuminating God's Son, the power of vision and the object of sight all became manifested. तो परपट बहुत ही छोटा है तो वो भी पढ़ता हूँ। The universe is by nature dense darkness and therefore the total creation is called tamas or darkness. The night is the real feature of the universe, for then one cannot see anything including oneself. The Lord out of his causeless mercy first desired to see himself and all the creation as well, and thus the sun became manifested. The power of vision for all living entities becomes possible and the objects of vision were also manifested. This means the whole phenomenal world become visible after the creation of the sun. तो आज हम लोग 2 श्लोका देखने वाले हैं, तो वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। बोध्यमानस्य ऋषिभिर आत्मनस्तज्जिगीर्षतः कर्णौ च निर्विधेयतां दिश श्रोत्रं गुणग्रहः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. By development of the desire of great sages to know
The ears, the power of hearing, the controlling deity of hearing, and the objects of hearing became manifested. The great sages desire to hear about the self. तो परपट ये भी बहुत छोटा है और प्रभुपाद के परपट बहुत इंपॉर्टेंट है. As stated in the Bhagavad Gita, by advancement of knowledge, one should try to know about the Supreme Lord, the summum bonum of everything. Knowledge does not mean knowledge only of the laws of the nature of or physical knowledge which are working by the direction of the Lord. The scientists are eager to hear about the physical laws working in material nature. They are eager to hear through the medium of radio and television about things taking place far away from them on the other planet. But they should know that the power of hearing and instrument for hearing were given to them by the Lord for hearing about the self or about the Lord. Unfortunately, power of hearing is misused in hearing the vibration of mundane affairs. The great sages were interested in hearing about the Lord through Vedic knowledge and nothing more. That is the beginning of oral reception of knowledge. Hare Krishna. मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्. हरे कृष्णा. तो धन्यवाद सबको, सभी का आशीर्वाद लेते हुए ये 2 श्लोक पे कुछ कहने का प्रयास करूंगा आप सबके आशीर्वाद से. तो जैसे कि कल भगवान का जो नासिका उसके ऊपर चर्चा हुई, तो और जैसे यहाँ इस शीर्षक ही है भागवतम जो है हर प्रश्नों का उत्तर जो है भागवतम में है. तो हर एक जो अपना अंग है, हमारे जो अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो भी हमारे अंग है उससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं. जैसे कि कल जैसे नासिका के बारे में जब उत्पत्ति हुई, हम जान सकते हैं कि जो चतुष कुमार थे उन्होंने वो पहले ब्रह्मवादी थे, और जब उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का जब उन्होंने सुगंध लिया, केवल उस सुगंध लेने से वो लोग भगवान के भक्त बने, मतलब भक्ति योग में आए. तो इतना क्या है, इतना बलवान है हमारी इंद्रियां, जो हमको माया में जकड़ रही है. वही इंद्रियां अगर हम भगवान के सेवा में अगर लगाते हैं तो वही हमको जो हमारे भक्ति में जो हमारी प्रगति में हमारी सहायता कर सकती है, हमको भक्त बना सकती है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान को ये पूरा जो सृष्टि देखने का जब इच्छा हुई, तो तब तब क्या हुआ, तब आंखें का निर्माण हुआ. तो देख सकते हैं कि भगवान केवल जब इच्छा करते हैं तो हर चीज निर्माण होती है. जैसे हम लोग केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति होगी या नहीं वो पूरा हमारे कर्म के ऊपर और भगवान के इच्छा के ऊपर निर्भर होता है. लेकिन भगवान क्योंकि उनके परे कोई नहीं है, तो भगवान केवल जब इच्छा करते हैं किसी चीज का तो हर चीज का निर्माण हो जाता है. तो प्रभुपाद तात्पर्य में सुंदर तरीके से लिखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये अंधकार का जगत है. इसलिए हम लोग जब भक्ति में भी नहीं थे तभी हमेशा एक लाइन सुनते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय. तो तमसो माँ मतलब आप अंधेरे जो है जो अंधारा है उसमें आप मत रहिए, आप रोशनी की तरफ आइए. ये हमको स्कूल में इसलिए पढ़ाया जाता था कि हमको लगता था कि अगर कोई शिक्षित नहीं है तो वो अंधकार में है. केवल शिक्षा ग्रहण करने से उसको रोशनी मिलती है. एक तरह से सही है, लेकिन वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ये हमको प्रभुपाद ने समझाया. और फिर उसके बाद में भगवान को जब इच्छा हुई तो पहले आंखें का निर्माण हुआ, और फिर केवल आंखें अगर है आपके पास, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग मतलब दुखदायक है कि वो पैदा अंधे होते हैं, भले ही उनको आंख होती है लेकिन वो देख नहीं पाते. तो देखने के लिए आंखें की जरूरत है, लेकिन फिर जो अंधकार को कौन दूर कर सकता है? प्रकाश. तो कैसा प्रकाश?
तो उसके वजह से भगवान ने जो है सूर्य का निर्माण किया, और केवल सूर्य का निर्माण नहीं, उस आंखों को उस देखने का भी जो शक्ति है, जो विजन, वो भी भगवान के द्वारा ही आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आप कभी भी सुबह जब सूर्य 12 बजे के आसपास जब देखते हो तो इतनी प्रकाश होता है सूर्य में, अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली एकदम सूर्य की ओर देखना चाहे तो वो देख नहीं पाएगा, उसको आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो इतना तेजस्वी होता है सूर्य। तो केवल आंखें है, लेकिन उसको देखने के लिए भी जो एक क्या कहते हैं शक्ति चाहिए, वो भी भगवान प्रदान करते हैं। तो नहीं तो हम इवन सूर्य को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो है, जो ये भौतिक जगत जो तमस है उसमें, तो सूर्य जो है केवल प्रकाश, मतलब आंखों को, मतलब पूरी पृथ्वी को देखने का ही प्रकाश नहीं देते। अगर हम देखेंगे 4 अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ये जो पूरा योग पद्धति है, भक्ति योग पद्धति, ये मैंने सबसे पहले किसको दिया था? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो ये भगवान इस अंधकार के जगत में केवल सूर्य के द्वारा हमको प्रकाश नहीं देते, बल्कि हमारे जो भौतिक ये जड़ विद्या से बाहर निकालने के लिए भी ज्ञान का प्रकाश देते हैं सूर्य भगवान के द्वारा। तो मतलब एक जो परंपरा है विवस्वान, जो भगवान, जो सूर्य का एक नाम है विवस्वान, उनके द्वारा भी आता है। तो भगवान देखिए, मतलब हम इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश सूर्य के द्वारा भी देते हैं, मतलब प्रकाश वो देते हैं, और उसके अलावा ज्ञान का भी प्रकाश देते हैं। जैसे चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता में कहते हैं ना, तत्ते अनुकंपार्थम क्या एवं अनुकंपार्थम ज्ञान दीपेन भास्वता, मतलब ज्ञान का दीप मैं प्रज्वलित करता हूँ। तो अपने अलग अलग भक्तों के द्वारा, तो उसमें एक सूर्य जो है वो विवस्वान। और भगवान लिखते हैं कि जो एक्चुअल जो ये पृथ्वी जो तमस है वो हमको रात में यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका एक्चुअल जो क्या कहते हैं नेचर, इसका जो स्वभाव है, ये पूरा अंधकार का जगत है। ये जो भौतिक जगत जिसका हम इतना सीरियसली हम लोग यहाँ पे रहने का जो कोशिश करते हैं, इतना गंभीरता से इस भौतिक जगत को हम लोग लेते हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या हम लोग नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेटस बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ। लेकिन दुर्दैव हमको ये पता नहीं, ये जो पूरा सृष्टि है भौतिक जगत एक अंधकार का जगत है, और केवल भगवान की कृपा से उन्होंने जो हमको नेत्र दिए हैं, उसके अलावा केवल नेत्र देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर सूर्य को भी सूर्य का निर्माण करके सूर्य के प्रकाश के कारण हम देख सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं इसका एक्चुअल जो नेचर, इसका जो स्वभाव है हमको रात में पता चलता है। जब सूर्य जब अस्त होता है तभी चंद्रमा आती है, नो डाउट। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है और जब अंधकार होता है, हम कुछ भी देख नहीं सकते। और प्रभुपाद कहते हैं हम खुद को भी कभी भी आप घर में बैठे हो और अगर रोशनी चली जाए, लाइट चली जाए, तो उस वक्त हम देख सकते हैं अगर कोई बैठा हुआ है वो अपने मतलब जहाँ कहीं बैठा है वहां से धीरे से उतरता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता, अगर पैर के नीचे कुछ है या है वो उसको कुचल सकता है या उसको कुछ लग सकता है। मतलब इतना ये भौतिक जगत का स्वभाव है, पूरे अंधकार तमस। तो भगवान की कृपा से हमको ये जो नेत्र मिले हैं, ये जो नेत्र मिले हैं उसका हमको सही उपयोग करना चाहिए। केवल हमको जितना हो सके भगवान का जो दर्शन है उसका हमेशा छवि हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। नहीं तो हम अगर इस आंखों से इस भौतिक जगत का क्या कहते हैं भोग लेना चाहेंगे तो फिर कोई उसका उपयोग नहीं है, तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये पूरा जो सृष्टि जो हम देख सकते हैं भगवान की कृपा से, जब भगवान को पहले इच्छा हुई
तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो कुछ हम लोग करना चाहते हैं इस जगत में, जो कुछ हमारे अंदर इच्छाएं है, वो एक्चुअली वो सारे इच्छाएं भगवान उसका स्रोत है। केवल फर्क इतना है कि जब भगवान का जो इच्छाएं है वो पूर्ण तरह से शुद्ध है, सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम, भगवान जो है विशुद्ध सत्व है। तो उनके अंदर जो भी इच्छाएं प्रकट होती है भगवान के, वो विशुद्ध स्तर पे होती है, और हम उसकी एक छवि है, रिफ्लेक्शन। जैसे 15वां जो शब्द है पुरुषोत्तम योग, उसमें भगवान बताते हैं ये यहाँ पे जो कुछ भी है वो एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब एक जो है एक उसकी छवि है। और कैसी छवि है, मतलब पूरा जो हमारे अंदर वही इच्छाएं जो प्रकट होती है इस भौतिक जगत में, लेकिन वो एक उसके वो इच्छाएं जब हम पूर्ति करते हैं, उससे हम लोग पापमय कर्म करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध स्तर पे नहीं है। नहीं तो ये सारे जो इच्छाएं हमारे अंदर है वो उसका स्रोत भगवान है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में उस इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं, वो एक वो इच्छाएं जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन, एक छवि है, पापमयी छवि। तो अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे, कृष्ण भावना अमृत के स्तर पे अगर कुछ कार्य करते, केवल वो कार्य जो शुद्ध होते हैं। तो फिर आगे भगवान यहाँ पे लिखा गया है, फिर जब ऋषिगण, यहाँ पे अभी भगवान और भगवान के जो भक्त है, तो यहाँ पे लिखा गया जब ऋषिगण को इच्छा हुई किसके बारे में जानने का, स्वतः अपने टू नो अबाउट द सेल्फ, टू हियर अबाउट द सेल्फ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम भगवान के बारे में तभी जानने का प्रयास करेंगे जब हम अपने बारे में पहले हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, राइट। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय 7वें अध्याय में, वो कैसे शुरू करते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, शृणु। तो जब हम सुनते हैं तो इस श्लोका को अगर हम रिवर्स पढ़ेंगे, शृणु, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो पहले इस श्लोक के बारे में देखते हैं। तो जब ये महान भक्त जो भगवान के भक्त है, ये ऋषिगण, जब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अपने बारे में जानने की, भगवान के बारे में भी जानने की, तब क्या हुआ, तब जो एक कर्ण है, कर्ण इंद्रिया, उसका उत्पत्ति हुआ। और उसके साथ केवल अभी हम देख सकते हैं कि जैसे हम इससे पहले देखा कि बहुत लोगों की आंखें होती है लेकिन उनको दृष्टि नहीं होती, उसी तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, कान तो होते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते, बचपन से सुन नहीं पाते। तो इसलिए सुनने की भी शक्ति भगवान ने दी। ओके, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग बिकेम मैनिफेस्टेड। और सारे जैसे भगवान कहते हैं ना, शब्द के पौरुषम ऋषु, तो इतर में जो साउंड है वो भी भगवान है। तो वो इवन हियरिंग जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसका भी भगवान निर्माण करते हैं। तो जैसे भगवद गीता के श्लोका में शृणु, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भक्ति में आने के बाद शृणु, पहले हमको सोचना सुनना है, जितना हो सके श्रवण करना है। तो फिर क्या होता है, तो इसको हम रिवर्स में लेते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां। तो हम जब सुनते हैं तो असंशयम, जितने भी हमारे अंदर डाउट्स है, जितने भी हमारे डाउट्स है वो क्लियर होने लगते हैं। तो पहले जो क्या करना है, इसलिए सुनना है। सुनने से क्या होगा, हमारे जितने सारे डाउट्स होते हैं, भगवान कौन है, हम कौन है, यहाँ पे हम क्यों आए, जैसे कल इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा था कि कर्म के बारे में, मतलब कैसे कैसे हमको कर्म लग सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जितना हम लोगों ने कल सुना उससे हमको बहुत सारा एक ये पता चला कि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो फिर हमको इतना डरने की जरूरत नहीं, कि सुनने से हमको थोड़ा राहत मिली। नहीं तो हम लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म लगते हैं। तो सुनने से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। तो मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रया, तो जब डाउट्स क्लियर होते हैं
जब हमको पता चलता है कि हाँ भगवान की भक्ति करने से सुनते हैं हम लोग तो डाउट क्लियर होते हैं। जो डाउट क्लियर होते तो हमको क्या पता चलता है, हाँ अगर भगवान की भक्ति करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त करूंगा मां शुचा। तो हम क्या करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। योगम युंजन मद आश्रय। तो हम भगवान का पूरी तरह से आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुनने से डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर होने से हमको एकदम आश्वासन आ गया कि केवल भगवान का जब हम शरण लेंगे, हम तो आश्रय जब भगवान के शरणों का लेंगे, भक्तों का लेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों का, तो हमको कोई जरूरत नहीं डरने की, या फिर इस भौतिक जगत से हमको कोई डरने का जरूरत नहीं। तो ये देखो, तो मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। तो जब हम लोग भगवान का शरण लेते हैं, ऑटोमेटिकली भगवान क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा, मया सक्त, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, राइट। तो इस श्लोका को अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ कहा है डेवलपमेंट ऑफ ईयर्स, भगवान के बारे में सुनना। तो जितना हम सुनेंगे, जितना हम सुनेंगे, और किससे सुनना है, शुद्ध भक्तों से सुनना है। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं दूध जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, उससे तुष्टि पुष्टि सब मिलती है, लेकिन वही दूध को अगर सांप ने डस लिया तो वही जहर बन जाता है। तो उसी तरह से ये भागवतम, ये शास्त्र, इससे हमारा जितना भी मैल है, अमल पुराण इसको कहा गया है, तो सारा मैल दूर हो सकता है। लेकिन कैसे, अगर शुद्ध भक्त से, व्यक्ति भागवतम से जब हम सुनेंगे तभी, नहीं तो वही हमारे लिए जहर का कारण बन सकता है। हम भक्ति तो दूर की बात है, हम हो सकते खुद को ही भगवान मानना शुरू करें, मतलब ये सारा पढ़ के, या फिर हमारे अंदर जो गर्व है, पंडित बनने का जो एक इच्छा है, वो जागृत हो सकती है कि देखो मैं पूरा शास्त्र जानता हूँ, श्लोका आता है, मैं बता सकता हूँ, मैं भागवतम का सप्ताह कर सकता हूँ, एक एक श्लोक पे मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ। ऐसी भी शायद हमारे अंदर हमारी धारणा बन सकती है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों से सुनना है, सुनने से सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, उससे हम भगवान का आश्रय लेने के लिए गंभीर होते हैं। और जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग जो है भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, जो जीवन का लक्ष्य है। आज अभी के टाइम पे हम लोग बहुत सारे अलग चीजों का आश्रय लेते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर, भगवान का आश्रय लेने के अलावा, भगवान के प्रति आसक्त होने के बजाय हम भगवान का जो रिसोर्सेज है, भगवान ने जो इस भौतिक जगत में इतना सारा उनका रिसोर्सेज है, उसका हम आश्रय लेते हैं, उसका हम उसके प्रति हम ज्यादा आसक्त होते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे अर्जुन और दुर्योधन। जब अर्जुन और दुर्योधन को चुनाव करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, तो अर्जुन ने भगवान को चुना और दुर्योधन ने रिसोर्सेस, जो नारायणी सेना है, उसको चुना। तो हमारा भी वही होता है, हम हमेशा भक्ति में भी आने के बाद भगवान के बजाय भगवान का जो पूरा ये रिसोर्सेज है, ये जो ऐश्वर्य है भौतिक जगत में जो कुछ, उसका हम बहुत बार चुनाव करते हैं। और फिर जब वो चुनाव करके जब हम फंस जाते हैं, जब हम संकट में आते हैं, फिर वापस हम भगवान का आश्रय लेने के लिए दौड़ते हैं। और फिर संकट जब खत्म हो जाता है, फिर हम भगवान को छोड़ के वापस हम लोग भगवान के रिसोर्सेज के प्रति भागते रहते हैं। ये हमारा ये जो क्या कहते हैं, सांप सीढ़ी का जो खेल है, ये चालू है हमारा। लेकिन जब हम बहुत अच्छी तरह से श्रवण करते रहेंगे, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस भौतिक जगत में भगवान और भगवान के भक्तों के, शुद्ध भक्तों के अलावा आश्रय लेने का और कोई भी चीज नहीं है, केवल भगवान और भगवान के भक्त। तो ये सुनने के माध्यम से ही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही जो है प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही अच्छी तरह से लिख रहे हैं। जो हमको ये कर्ण दिए गए हैं, कर्ण इंद्रिया, सारे मतलब जितने भी हमारे इंद्रिया है, जैसे अम्बरीश महाराज उदाहरण, जो अम्बरीश महाराज की तरह हमको भी अपने हर एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना इसलिए हमको दिए गए हैं। तो जैसे शिला प्रभुपाद 15वें अध्याय में जो आता है श्लोका, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाहम विषयान उपसेवते। तो श्रोत्रम, जिससे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणम एव च,
तो ये सारे जो इंद्रियां हैं, अगर हम इसका भौतिक उपभोग करेंगे, भगवान के बारे में या भगवान की सेवा में न लगाते हुए उपभोग करेंगे, तो क्या करेगा, जो मन इसका पूरा सेंटर है वो क्या करेगा, ये विषया को हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, तो जब अगला जो हमारा जन्म होगा, डिपेंडिंग हमने ये सारे इंद्रिय किस विषय वस्तु में भोग किया है, उसी तरह का हमको अगला शरीर मिलेगा। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 15.9 में कि अगले जन्म में हो सकता है बिल्ली, कुत्ता या कोई भी, मतलब नीचे जो योनि है उसमें हमको जन्म मिलेगा, डिपेंडिंग हमने हमारे इस इंद्रियों को किस किस सेवा में लगाया हुआ है। और वही प्रभुपाद लिखते हैं, अगर भगवान के भक्ति सेवा में लगाया है तो डेफिनेटली या तो अगला जन्म हमको भक्त के घर में, या फिर उसी वो जन्म जब खत्म होते होते हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे इंद्रियां, तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद, जब प्रभुपाद पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने ये नोट किया कि अभय चरण जो है वो बहुत गंभीरता से सुनते हैं। दिस बॉय लिसन्स वेरी, ही लाइक्स टू लिसन। और जब वो वापस प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु से हार्डली 2 या 3 बार मिले, लेकिन पहले ही मीटिंग में उन्होंने नोट किया कि जो अभय चरण है उनको सुनना बहुत ही मतलब ही लिसन्स, उनको सुनने का उनके अंदर गुण है। और जब सेकेंड टाइम जब प्रभुपाद दीक्षा के लिए उनको वृंदावन में जब मिले, तो एक उनके जो शिष्य वो बता रहे थे कि ये अभय चरण है और ये बहुत अच्छा आपका सेवा कर रहे हैं, अच्छा प्रचार। तो उन्होंने बोला यस आई नो दिस बॉय, ही लाइक्स टू लिसन। तभी भी देखिए उन्होंने उनको मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद वो वापस मिले उनको, नहीं आई थिंक मतलब 10 साल के अंदर बहुत काफी टाइम के बाद वो मिले, फिर भी उन्होंने वापस वही बोला यस आई नो दिस बॉय, मतलब मुझे इनके बारे में आप इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, मैं इसको जानता हूँ। और तभी भी उन्होंने वही कहा ही लाइक्स टू लिसन, आई डेफिनेटली गिव हिम इनिशिएशन, मैं इसको डेफिनेटली इसको दीक्षा दूंगा, ये सुनना बहुत पसंद करते हैं। और उसी तरह जब एक बार यात्रा लेके गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, और जो लास्ट दिन था तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है, तो जिनको शेषशाही एक ये था मंदिर, जिसको शेषशाही का दर्शन करने जाना है वो जा सकते हैं, और मैं यहाँ पे कथा करूंगा, जिनको कथा के लिए बैठना है वो बैठ सकते हैं। तो सारे जो है वो जो है मंदिर में दर्शन के लिए गए, और हार्डली 10 या 15 भक्त जो थे वो कथा के लिए रुके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया 1 घंटा 2 घंटा, उसमें से भी जो 15 या 20 भक्त थे वो भी चले गए, और लास्ट में केवल 4 लोग बचे थे। और ऑलमोस्ट उन्होंने 4 घंटे की कथा की, और पूरे 4 घंटे शिला प्रभुपाद एकदम पूरी तरह से अटेंटिवली सुन रहे थे। तो प्रभुपाद एक्चुअली हमको अपने उदाहरण से ही सिखा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद मतलब इतना, मतलब उनका आचरण ही इतना सही है, प्रभुपाद का आचरण। इसके वजह से जब भी प्रभुपाद कुछ लिखते हैं वो बहुत ही पावरफुल, मतलब जब प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वी शुड, हमारा जो कर्ण इंद्रिया है वो भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के भक्तों की लीला, भगवान की लीला, तो जब वो लिखते हैं तो अगर कोई पूछेगा प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है तो वो भी ऐसे सुनते थे क्या, तो यहाँ पे हमको उदाहरण मिलता है उनके आचरण से। मतलब 4 घंटे उनके गुरु महाराज कथा कर रहे हैं और बिना पलक झपकाए, बिना ये वो सुने जा रहे। और तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा कि ये सारे जो बाकी जो लोग भगवान के मंदिर जो गए हुए दर्शन लेने के लिए, वो क्या देखेंगे, व्हाट विल दे सी, उनको क्या दर्शन होगा। क्योंकि यहाँ वो क्या हमको बताना चाहते हैं कि हमारा पहला जो भगवत दर्शन है या भगवान का दर्शन है वो कर्ण इंद्रियों के माध्यम से होता है। जब हम सुनेंगे, जब गुरु हमको बताएंगे कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, उनके गुण लीला, तब हम एक्चुअली जब हम फिर उसके बाद में हम जब दर्शन लेंगे तब हम एक्चुअली जो गुरु ने हमको बताया हुआ है वो दिव्य ज्ञान जो प्रकाशित होता है, और तब हम एक्चुअली भगवान को देख पाते हैं।
जैसे मायापुर में श्री श्री राधा माधव, कितने लोग आके देख के चले जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह, लेकिन जब भक्त उसको देखता है श्री श्री राधा माधव को, वो अपना आंख उधर से निकाल नहीं पाता। लेकिन टूरिस्ट जो आते हैं, आप बोलते हैं कितना अच्छा सुंदर ये है और चले जाते हैं। उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ कुछ तो एक अच्छा लगा उनको, बस नो डाउट उसका भी उनको ये उसका फल उनको मिलेगा। क्योंकि भगवान का दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कुछ जन्मों बाद वो भी भक्ति में आ जाए वो, लेकिन जो भक्त है जब वो अर्च विग्रहों का दर्शन लेता है, उनका अलग ही भाव होता है, क्योंकि उन्होंने गुरु के और जो परंपरा में आते हैं जो भक्त है, उनके माध्यम से पूरा भगवान का लीला सुना हुआ है, भगवान के बारे में जाना हुआ है। इसके वजह से जब वो लोग दर्शन लेते हैं तो उनका अलग भाव होता है। वो अपना मतलब आंखें निकाल नहीं पाते भगवान के चरण कमलों से, इतने सुंदर उनका जो मुख कमल है। तो ऐसा होता है। तो ये जो हमारे जो भगवान की इच्छा से जो हमको ये सारे इंद्रियां मिली हुई है, वो प्रकट होती है भगवान की स्व इच्छा से। और भगवान जब भी कुछ इच्छा करते तुरंत वो हो जाता है। हमारे जैसे नहीं हम, क्योंकि हमारी इच्छाएं पहले तो शुद्ध नहीं है। हमारे हर एक इच्छा हमको इस कर्म बंधन का कारण बनाती है। इसके वजह से भगवान बहुत सारे हमारी इच्छाएं जो स्पेशली भक्त, एक बार कोई भक्ति में आ गया तो भगवान हर एक इच्छा पूर्ति करने से पहले देखते हैं कि इसको भक्ति में आगे लेके जाएगा या इसको वापस माया की ओर लेके जाएगा। और जब भगवान तो उनको तो सब पता है, जब उनको पता चलता है कि ये इसको भक्ति के पद से हटा देगा, तो वो इच्छा तो भगवान बिल्कुल पूर्ति नहीं करते और केवल वो इच्छाएं पूर्ति करते हैं जो हमारे भक्ति में आगे लेके जाए। तो इसलिए अम्बरीश महाराज की तरह हमारे शिला प्रभुपाद और सभी जो भी आचार्य, हमारे गुरु महाराज, हमारे जितने भी इस्कॉन में जो गुरु वृंद है, वैष्णव जो है, उनकी तरह से वो जिस तरह से अपना पूरा जीवन, अपनी सारी इंद्रिया भगवान के सेवा में जैसे उन्होंने उनको नियोजन किया है, उसी तरह हमको भी करना चाहिए। तो तभी मतलब इस शरीर और इस इंद्रियों का कुछ उपयोग है, नहीं तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। तो इसके साथ में यहाँ पे रुकता हूँ। तो ये सारे जो भगवान ने हमको इंद्रियां दी है, ये हमें एक्चुअली मनुष्य जन्म तो जो मिला है और ये जो सारे इंद्रियां हमको मिले, वो केवल एक ही एक्टिविटी, एक ही कार्य के लिए दिए गए हैं कि हम भगवान को जान सके और भगवान के सेवा में उसको लगा सके। उसके अलावा अगर हम कुछ और करते हैं तो ये मूर्खता है। तो हमको ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट हम भक्तों को तो, मतलब बाकी लोगों को तो अभी तक पता नहीं कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, और वो जानना भी नहीं चाहते। ऐसे लोगों से हम कुछ कर नहीं कर सकते। लेकिन हम जो कुछ गिने चुने जो हमको ये अवसर मिला है, बहुत भाग्यशाली है हम, बहुत भाग्यशाली। इस पथ पे आए हैं, यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। तो हमको दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है, इस भाग्यशाली को और सुभाग्यशाली बनाना है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सारे भक्तों का, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट किए, वेरी नाइस। तो जैसे आज का जो श्लोक है कि जैसे भगवान ने ये सब जो ऑर्गन्स है हमारे लिए निर्माण किया, ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भगवान ने नासिका, फिर बाद में जिह्वा, हमारी भूख, हमारी प्यास, हंगर, सब उन्होंने मतलब एक कभी जैसे हम लोग क्रिएशन का जो भाग है, जैसे हम लोग सर्ग देख रहे हैं, हम लोग क्रिएशन सर्ग विसर्ग जो है सेकंड पार्ट, जो ये अब एक जो है निर्माण होता जा रहा है। तो सारे इंद्रियां भी जो हैं वो इंद्रियों के साथ में इंद्रियों के देवता भी आ रहे हैं, और फिर सब सारा कंप्लीट हो जाएगा। देन जो है आगे फिर सृष्टि को कैसे बढ़ाना है वो सब जो है प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो थैंक यू प्रभु, मेरी मतलब बहुत कुछ पॉइंट जोड़े। हरे कृष्णा बोले। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। हरे कृष्णा।
आपकी आवाज नहीं आ रही विशंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी आ रही प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? हाँ 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 प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आ रहे हैं। अभी आ रहा है? हाँ हाँ अभी आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण अभी आ रहा है। आपको सुनाई दे रहा है प्रभु? हाँ हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी। यस प्रभु आ रहा है आपका। नेटवर्क इशू रहा होगा। अच्छा प्रभु जी, काफी सुंदर क्लास दिया आपने और काफी अच्छे से आपने तैयारी की। और प्रभु मेरे बस आपका एक चीज जो आपने सूरज वाला उदाहरण दिया, मतलब जो शिला प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है कि हमको देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, और वो सूरज भगवान हमको, सूर्य देव हमको दिया भगवान ने। और आपने फिर उससे एक दूसरा उदाहरण कनेक्ट किया कि सूर्य देव हमको ज्ञान का प्रकाश भी देते ही हैं और उजाला भी हमको देते ही हैं, ये दोनों देते हैं। तो शायद ये आपने खुद ने अपने रियलाइजेशन हुआ होगा, तो आपने हमको शेयर किया या आपने कहीं से सुना होगा। और अर्जुन दुर्योधन वाला उदाहरण भी काफी आपका अच्छा लगा मुझे, जिसमें आपने बताया कि अर्जुन ने भगवान को चुना। हालांकि हम ये काफी बार सुनते हुए आए हैं, कोई सोच सकता है कि इसमें नई क्या चीज बात लगी, लेकिन जैसे हम हमेशा सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज निकलती आती है। प्रभुपाद जी की बुक्स में से हमेशा कुछ ना कुछ नया रिलेशन आता है। तो इससे आज हवाले से हमको ये पता चलता है, खास करके मुझे, कि अर्जुन ने भगवान को चुना और दुर्योधन ने रिसोर्सेस चुने। तो हम यही सुनते हुए आते थे कि दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुना, तब तक हमको भगवान की सेना दिख रही थी। लेकिन आज वाले उदाहरण से हमको पता चलता है कि भगवान के को रिसोर्सेस को चुनते हैं जो लोग, वो भी दुर्योधन की, जिनकी माता की प्रकृति के आश्रय में भी रहते हैं। तो बहुत अच्छा आपने ये समझाया प्रभु जी। और एक चीज में यहाँ पर, जैसे मैं जब ये तात्पर्य पढ़ रहा था तो इसमें ये था कि भगवान की इच्छा हुई कि अपनी सृष्टि को देखने चाहने की इच्छा हुई उनकी। तो पहले तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन उसका फिर मुझे उत्तर भी मेरे ही मन से या दिमाग से मिला, लेकिन हो सकता है कि आप और अच्छा उत्तर दे सको। तो जैसे उसमें देखो, भगवान की देखने की इच्छा हुई अपनी शक्ति को, तो पहले मेरे मन में डाउट होता, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख सकते हैं। फिर मैंने भौतिक विचार से सोचा, जैसे हम कई बार कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है और अपनी पैसे की शक्ति से कहीं ना कहीं कुछ बिल्डिंग्स बनवाता है और बोलता है कि आप बनाओ। फिर जब वो कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसकी खुद की देखने की इच्छा होती है, मैं जाके देख के आऊँ एक बार हुआ कैसे। हालांकि शक्ति सारी उसकी कार्य कर रही थी, सब कुछ उसी की बुद्धि से सारा कार्य हो रहा था, सब कुछ उसी के डायरेक्शन में हो रहा था, फिर भी उसके अंदर एक बार इच्छा होती है कि मैं एक बार जाके देख के आऊँ। इस तरीके से मैंने इस चीज को थोड़ा सोचा। और प्रभु जी काफी सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। और जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी अपना जो भक्ति का, जो श्रीमती राधा रानी का उनके प्रति जो प्यार है, उसका आस्वादन करने के लिए जैसे आते हैं, तो उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं प्रभु ने। ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। और लास्ट में अपने जो प्रभुपाद जी का और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी का जो सुनाया, वो भी बहुत सुंदर था। तो जो पहले सब करते हैं, फिर हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि कान कितने जरूरी है, कान इंद्रिय श्रवणम, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला है कि पहले श्रवणम करो। अगर श्रवणम ही नहीं करोगे तब तक आपके हृदय में वो उतरेगा ही नहीं। जाएंगे मंदिर में, फिर भी आपको वो विग्रह एक्चुअल कृष्णा क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ वो मार्बल की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति ऐसे ही दिखेगा। धाम में भी जाओगे तो भी धाम का महत्व नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कान कितने जरूरी है। तब भी जो हमें अभी दिख रहा है आंखों से, उसके अलावा भी और उसकी सुंदरता है वो दिखा पड़ती है।
ये बहुत अच्छा लगा। जैसे कि वो सब भक्त गए उधर मंदिर में देखने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का लेक्चर छोड़ के, फिर भी उन्हें क्या दिखा होगा वहां पर, जबकि यहाँ पर महाराज जी ने खुद इतने अच्छे से 4 घंटे की कथा में सब कृष्ण प्रेम दिया था। हरे कृष्णा।